Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guru Namaha. Good afternoon, everybody. Actually, today is great honor to be a part of a speaker in the conference which is held by my dreamed institute of Kerala, which is AVS Kottakkal. Actually, when I grown up studying BAMS undergraduate Ayurveda, there has always been a dream that I could get a chance to speak in front of the people who are from the warrior family. Because when I was thinking of great traditions in Maharashtra, like Nanal Parampara, Khadiwale Parampara, Kolatkar Sir Parampara, I was always fascinated with the parampara called as warrior parampara. This is the dream which is coming to today. I am giving my speech on this very burning subject nowadays on autoimmune diseases. Our distinguished guest will forgive me if I will use some Marathi kind of language in between, because some of the thoughts can be, or some of the feelings can be well spread with the help of that language to all the audience, which are my colleagues here. We are doing fantastic Ayurvedic practice in Pune or all over. So this is the first slide. I am trying my level best to convey what autoimmune disease I have perceived from the text of Ayurveda and from the great gurus like Tapan Kumar sir. You can see the various news coming in the newspaper. When you see the newspaper in the morning, it's very difficult to hear about the good news. You can come across such kind of news which you feel that not to see the newspaper every day in the morning. These are some news. Why man was driven to kill his mother. दूध भेसळीचे दुष्परिणाम त्यावरील उपाय. You can see that city ashamed the girl gang raped in bus in South Delhi at 9:30 p.m. The blast in bomb in Pune, which was never seen before, but it was in the German bakery. That was the news. And you can see, watch out for wax on your apples, detergents in milk. All these things have been mentioned by Charak in Janapadodhonsa. Janapadodhonsa is not merely a chapter which is giving you the idea of Janapadodhonsa itself. It is not just epidemiology. It is about the day-to-day practice which you are going to come across in Kali Yuga. It is clearly mentioned that Satyug, Tretayug, Dwapari and Kali Yuga. Yuge yuge dharmapada kramena anena hiyate gunapadaccha bhutanam lokaha eva praliyate. That has been mentioned. The Punarasu Atreya says to Agnevesha that when the end of Kali Yuga will come, it will be a pralaya. Agnivesh asks his guru, why it is happening? सतयुग में 400 बरस की आयु थी, त्रेता युग में 300 बरस की रह गई, द्वापर युग में 200 पे आ गई, एंड कलयुग में आदमी 100 बरस से नीचे तक आ गया. What we are talking about is yes, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. लेकिन अगर बड़ी लंबी दोनों लाइफ मिल सकती है तो वो किसी को नहीं चाहिए. तो जब अग्निवेश पूछता है पुनरुस्वात्रेय को कि अत्रेय क्यों ऐसा हो रहा है, कलयुग में क्यों होगा ऐसा जनपदध्वंस, तो अत्रेय बहुत अच्छा उत्तर देते हैं. वो बोलते हैं वायवादीनाम यद वैगुण्यम उत्पद्यते तस्य मूलम अधर्मः तन्मूलम व असत्कर्म पूर्वकृतम च तयो येनि प्रज्ञापराधे एव. अधर्म ये मूल है सबका. दिस इज व्हाट अधर्म इज. अधर्म ये क्या होता है, तो उन्होंने उसका आगे जाके उत्तर बताया. जब कलियुग आएगा तो आदमी को शरीर गौरव हो जाएगा, वो जड़ बन जाएगा, उसकी एक्टिविटीज कम हो जाएगी. शरीर गौरवात् श्रमाः, श्रमात् आलस्यम, आलस्यात् संचयः, संचयात् परिग्रहः, परिग्रहात् लोभः, लोभात् अभिद्रोहः, अभिद्रोहात् अनृतवचनम, अनृतवचनात् काम क्रोध मान द्वेष अभिघात भय ताप शोक चिंतोद्वेग वेगादयः प्रवृत्ताः. ये कलियुग में होगा. आदमी को परिग्रह होगा, ममत्व होगा, ये मेरा है, ये मेरे सिवा किसी का नहीं है, ये मेरा ही रहना चाहिए.
दूसरे का है वो भी मेरा है, मेरा जो है वो मेरा ही, लेकिन दूसरे का भी मेरा है। ये जो लोभ है, ये जो परिसंचय है, दैट इज द कॉज ऑफ मेनी मोर डिसीजेस, दैट व्हाट इज बीन मेंशन। एक बात बताता हूं, मुझे ऑटोइम्यून डिसीज स्टडी करने की जिज्ञासा कहां से उत्पन्न हुई। मैंने एक जगह पढ़ा कि पहले जमाने में दो ही प्रकार के डिसीजेस मेडिकल साइंस में बताए गए हैं। वन इज कॉल्ड एज एक्सोजीनस डिसीज एंड अदर इज एंडोजीनस डिसीज। गए 10 बरस में एक आगे डिसीज आया विच इज कॉल्ड एज ऑटोजीनस डिसीज। दैट क्लिक्ड मी दैट दिस इज समथिंग फैसिनेटिंग। देखिए, पहले भारत पाकिस्तान में वॉर होता था, भारत चाइना में होता था, बाद में महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर में हो गया, राज्य राज्य में, बाद में डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में हो गया, सीमा प्रांतवाद जिसको बोलते हैं उसके हिसाब से, बाद में ये गांव गांव में होने लगा, बाद में मोहल्ले मोहल्ले में होने लगा, उसके बाद घर घर में होने लगा, और इसके बाद हमारी लड़ाई हमारे आप से हो रही है। दिस इज व्हाट ऑटोइम्यून डिसीज। द्वैत और अद्वैत दो चीजें अलग नहीं है, दैट इज अद्वैत। दो चीजें अलग है, दैट इज द्वैत। बॉडी जब कहती है ना दिस इज नॉट माइंड, दिस इज समथिंग डिफरेंट, अटैक इट, दिस इज ऑटोइम्यून डिसीज। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज पिंड ब्रह्मांड न्याय। जो ब्रह्मांड में होता है वही पिंड में होता है। चरक ने तो यही बताया, यावंती लोके तावंत पुरुषे। तो ब्रह्मांड में ऐसा हो रहा है हर एक आदमी, इसीलिए चरक बोलता है मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी मानसम प्रति भैषज्यम त्रिवर्ग से अनवेक्षणम। देखिए, वो बोलता है कि आप खुद की परीक्षा करो, बाकी लोगों की परीक्षा बात की बात है। आप खुद को तो अन्वेषण करो, खुद का अन्वेषण करो, पहले आत्म परीक्षण कर लो पहले। Why? Because this is what making a problem. ज्ञानेश्वर माउली भी बोलते हैं कि आत्मरूप की देखो, आत्मसुख को देखो। अगर आप स्वबुद्धि से आत्मरूप को देखेंगे, दुनिया की हर चीज आपको अच्छी नजर आएगी, दुनिया की हर चीज के बारे में ईर्ष्या द्वेष आपको नहीं आएगा, एंड दैट विल डेफिनेटली मेक यू इंटैक्ट एज फार एज फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिसीज इज कंसर्न। दैट इज द बेस ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज। नेक्स्ट प्लीज। Now, modern concept of autoimmune disease. Immune tolerance is a fundamental property. Tolerance, ये immunity है ना, वो tolerate करती है। वो immunity tolerate करती है, तो क्या करती है? Non-self discrimination is the ability, non-self and self, to recognize and respond to foreign antigen, but not self antigen. देखिए, self antigen हो ही नहीं सकता actually, तो फिर इसको self क्यों बताएंगे आप? Self is absolutely a self. You should say it as a self. Then how can the self become an antigen? But yes, it happens in the autoimmune disorder. Otherwise, immunity क्या करती है? Self को intact रखती है, non-self को destroy कर देती है। यहां पर गलत होता है, यहां पर self पे ही अटैक किया जाता है। Autoimmunity is evoked when this tolerance to self antigen is broken. ऐसा कुछ तो होता है सेल्यूलर लेवल पे कि सेल अपने सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, उस पर अटैक हो जाता है और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो तैयार होता है। इन शॉर्ट, ऑटोइम्यूनिटी इज द रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस व्हिच इज एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, दिस इज अ वेरी गुड टर्म एज फार एज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज कंसर्न, मॉलिक्यूलर मिमिक्री, वेरी गुड टर्म। The word mimicry itself is an imitation. It is an imitation. It is impersonification or copying something. That is mimicry. हम mimicry देखते हैं ना बहुत बार, तो that mimicry is happening at molecule. It is a close resemblance of an animal or planet to the another plant or animal. That is what called as mimicry. तो इसमें क्या होता है? देखिए, the cell is abused due to lack of rest. दूसरा कुछ नहीं, ये भाषा मॉडर्न की है, आयुर्वेद इससे कई गुना आगे है। द सेल इज अब्यूज्ड ड्यू टू लैक ऑफ रेस्ट, ऑप्टिमल नरिशमेंट, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट इंसल्ट बाय एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड टॉक्सिन्स।
जो क्लेद है, जो मल है, उसका संचय है, धात्वाग्नि में बहुत ज्यादा धातु मल संचय हो गया है, ये सब प्रकार की चीजें इसमें होती है। फ्री रेडिकल्स, ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बॉडी का, ऑक्सीजन ज्यादा बॉडी इस्तेमाल कर रही है, और इसलिए द एंटीऑक्सीडेंट्स आर सेलिंग लाइक नथिंग। देयर आर so many antioxidants, but we are not able to put in that way. That doesn't mean we are poor. Antioxidant is a concept which reduces the oxidation process of the body. And the reactive oxygen species, which are the free radicals, are reduced. इसमें उसकी बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो जाती है। जब ये प्रॉब्लम होता है तो there is excessive amounts of free radicals. तो फिर वो शरीर को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लिबरेट हो जाता है। Cells are less efficient to eliminate waste products and exogenous toxins. जो सेल्स पहले वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते थे, उत्सर्जन क्रिया जो अच्छी थी, वो सेल्स नहीं कर पाते। जो अच्छा धातु होता है ना, वो धातु मलों को भी बाहर निकालता है, लेकिन ये विशेष साइकिल बन जाता है बाद में। धातु मल ज्यादा बढ़ते हैं, धातु मलों को बाहर नहीं फेंकने देते, फिर ये विशेष साइकिल बन के धातु मल, आम, ये धातु को खराब कर देते हैं। आमेन तेन संपृक्ता दोषा दुष्याच दूषितः सामा इत्युपदिश्यन्ते एच रोगा तदुद्भवा, ये कंडीशन उसमें आ जाती है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टॉक्सिन्स इनकॉर्पोरेट देमसेल्व्स इनटू सेल मेम्ब्रेन्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीस सेल्स बाय इम्यून सिस्टम एंड ओल्ड एंड डैमेज्ड वंस। इम्यून सिस्टम बोलती है अभी ये ओल्ड एंड डैमेज्ड है, अपने शरीर के है फिर भी ये ओल्ड डैमेज है करके वो सिग्नल जाता है इम्यून सिस्टम पे। दिस इज व्हाट एक्चुअली द अल्टरेशन इन द इम्यून सिस्टम। एंड the attack and elimination, the antibodies attached to cell membranes of old and damaged cells, फिर ये इसको sending other components of immune system to destroy antibody attack cells, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और फिर ये डिपॉजिट हो जाता है शरीर में। कहां? तो यत्र संघः कयुगुण्यात् व्याधिस्तत्रोपजायते, क्षिप्यमाना स्वयुगुण्यात् रसा यत्र सज्जति यत्र सा करोति विकृतिम तत्र खे वर्षमिव तो यदा। वो सोचते हैं, वो डिपॉजिट जो है ना, इमीडिएट डिसीज नहीं करते हैं, तत्र संच विलंबते, वो विलंब करते हैं, थोड़ा सर्च कर लेते हैं, उनके एंटेना जो है ना वो सर्च कर लेते हैं, टावर्स रहते हैं उनके, और फिर जहां क्षिप्यमाना स्वैगुण्यात्, जहां पर ख वैगुण्य है, धातु वैगुण्य है, धातु दृष्टि है, स्रोतस दृष्टि है, वहां पर वो डिपॉजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। दिस व्हाट हैपेंस अहेड। जब फेलियर ऑफ इंटॉलरेंस होता है तो ये डिपॉजिट जो है, ये इनएप्रोप्रिएट, ओवर एक्टिव, एबनॉर्मल, अल्टर्ड, एबरेंट रिस्पॉन्स की वजह से ये एंटीजेंस आइदर टिश्यू में, ऑर्गन में, और ऑटो इम्यून की। हम जब संप्राप्ति की व्याख्या स्टडी करते हैं, यथा दुष्टेन दोषेन यथाच अनुविसर्पता निर्वृत्तिर अमयस्य सो संप्राप्तिर जातिर आगति, तो ये यहां शुरू होती है निर्वृत्ति। यहां दुष्टेन दोषेन अनुविसर्पण शुरू हो गया, इसके आगे होगा निर्वृत्तिर आमयस्य सो। नेक्स्ट प्लीज। व्हाट हैपेंस? सी, autoimmune disorder may result in destruction of one or more types of body tissue. Either एक मार्ग में रहेगा, द्विमार्ग में रहेगा, सब मार्ग में रहेगा। एक धातु को दुष्ट करेगा, बहुत सारे धातुओं को दुष्ट करेगा, एक स्रोतस को, बहुत सारे स्रोतस को। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गन, शरीर का कोई भी शरीर अवयव इससे पैथोलॉजिकली बढ़ेगा। It can lead to hepatomegaly, it can lead to splenomegaly, it can lead to hydronephrosis, कुछ भी हो सकता है। Abnormal growth of an organ. Next one, just please. First one. Changes in organ function. This is very important. You can't see any organic problem, but you can see a functional variation. It can be a changes in organ function. Organ का function बिगड़ जाएगा। सो क्रियात्मक दृष्टि हो जाएगी, आप कुछ देख नहीं पाएंगे लेकिन आपको ध्यान में आएगा कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज फंक्शनल प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्लीज, सी दिस वन। दीज आर द थिंग्स व्हिच आई हैव सीन ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ बॉडी टिश्यू। एक चीज आप देखेंगे तो दैट इज द केस ऑफ वैस्कुलाइटिस केम टू माई क्लिनिक। द पेशेंट वॉज आस्क्ड दैट lifelong she will need a steroid and she will come across repeated kinds of wounds on her legs. And she was told that this is not curable.
She has to be steroid dependent. This is destruction of the tissue of the leg. Second one is alopecia areata, जो हमारे इसमें इंद्रलुप्त इस नाम से बताया गया है शिरो रोग में. एलोपेशिया इरिएटा बहुत ज्यादा राइज पे है. रशिया में बहुत सारे पेशेंट्स हैं अभी. रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री टू सफर फ्रॉम एलोपेशिया एरिएटा, एलोपेशिया टोटालिस एंड एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस. रशिया में बहुत ज्यादा मैं अभी पेशेंट वहां से देख रहा हूं. Abnormal growth of an organ. See the case. This is a very interesting case. I will just narrate furthermore. Abnormal growth of an organ. This is olecranon tumor. Came to my clinic. Patient didn't came to my clinic for olecranon tumor. Believe me. She came to me for other thing. But this was the thing. She asked me to get treated afterwards because she originally got the relief from what she presented for. And this one, it changes in organ function. आप अगर देख सकते हैं इस स्लाइड में, तो देयर इज नो कंपार्टमेंट एज सच ऑफ द पटेलोफिमोरल जॉइंट, नी जॉइंट. द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ टिबिया एंड लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ टिबिया इज टोटली फ्यूज्ड. पेशेंट वाज ब्रॉट टू मी बाय टेकिंग 4 people, taking her with stretcher in my clinic, and the patient was advised to go for surgery. This was the patient having this. The report was total loss of compartment loss, extensive case of osteoarthritis, immediate surgery needed. Next please. मॉडर्न में जो बताया वो बता रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी नैरो डिस्क्रिप्शन. इससे बियॉन्ड ऑटोइम्यून देखा जाता है. Organs and tissues commonly affected by autoimmune mechanism are blood vessels. They are first one, because all that autoimmune phenomena goes through the blood vessels throughout the body. So blood vessels are affected very commonly. Connective tissue or collagen tissue we may call as. Endocrine glands such as thyroid or pancreas. Interestingly, आप सब केसेस देखते हैं तो आपके क्लिनिक में TSH बढ़ा हुआ है, ऐसी केसेस आती है आजकल ज्यादा. 11, 12, 15, 20 ऐसा थायराइड होता है. आजकल TSH मोर देन 100 के केसेस कम देखे जाते हैं. जो पहले जमाने में मैं जब सर्जरी में काम करता था, तो आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी दिस 11, 15, 20. आई हैव कम अक्रॉस 50+ और 100+ TSH. क्लासिकल हाइपोथायराइडिज्म. Nowadays, you can come across the hypothyroidism, which is called as subclinical hypothyroidism or Hashimoto's thyroiditis. That is which is common. We are coming across. So thyroid, joint, which is very common, and this is one of the bread and butter of Ayurvedic doctors. Joint problems because of autoimmunity. No one can beat this. We can definitely give a classical results in joint problems. So if you can ask me, we should learn joint in a total concept. It is sorry to say, but most of the time we are treating as a joint specialist, but we don't know the anatomy of the joint. We don't know how the knee joint is formed. What is cruciate ligament? We don't know. Anterior cruciate ligament, posterior cruciate ligament, medial meniscus, lateral meniscus, we never know, but we are treating the diseases. This should not happen. Or otherwise, we need to know Snayu Kandara in toto, which Shruta has mentioned about. Muscles, which is again, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट बताते हैं, I have not got any joint problem. मुझे मसल का प्रॉब्लम है. I am having muscle problem. ऐसा पेशेंट ही खुद बताते हैं. माझे स्नायू दुखतात, माझ्या नसा दुखतात, माझे मसल्स दुखतात, असं पेशंट स्वतः सांगतो. पेशंट नाही सांगत कधी. पेशंट म्हणतो माझे हाडं दुखत नाहीत, माझे सांधे पण दुखत नाहीत, माझी मसल्स दुखतात. रेड ब्लड सेल्स, RBCs are having this kind of autoimmune problem. Especially it is seen in red cell aplasia or pernicious anemia. And skin, again this is one of the bread and butter of Ayurvedic doctors. Skin, लोगों को डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कंप्लीट क्योर मिलता नहीं है. वो आपके पास बड़ी आशा के साथ आते हैं कि मुझे बार बार ऑइंटमेंट्स लगाना नहीं पड़े, मुझे स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं पड़े. इसमें भी बहुत सारे एंगल है. सोशल एंगल है, कॉस्मेटिक एंगल है, इकोनॉमिकल एंगल है, बहुत सारे एंगल है. नेक्स्ट प्लीज. देखिए, मैं कुछ केसेस नरेट करूंगा. दिस इज अ केस विच आई हैव मेंशन यू. ये एक्चुअली मेरे पास तो आई थी कि हाथ पैर बहुत दुखते हैं और बहुत श्वास लग रहा है. मैंने जब देखा तो उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर था. व्हेन शी अप्रोच्ड माय क्लिनिक, मेरा क्लिनिक दूसरे माले पे था पहले. पेशेंट को 22 सीढ़ियां चढ़ के आना पड़ता था. तो शी वाज सिटिंग इन द पार्किंग. I saw her and I could note that this is having a
वेरी सीवियर माइट्रल मर्मर, एंड उनको मैंने बताया कि ये आपका थोड़ा अगर कहीं तो क्रिटिकल है, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा, डिसीज क्योर मैं नहीं कर सकता। जब उनका सांस कम हो गई और उनका हाथ पैर का दर्द कम हो गया तो उनको मेरे बारे में विश्वास पैदा हुआ। एंड देन शी शोड मी दैट ये भी जरा अच्छा कर दो ना, राइट ओलिक्रॉन बर्साइटिस और राइट ओलिक्रॉन ट्यूमर। उनको लगा कि अभी इसको ये भी अच्छा कर सकते हैं। मैंने देखा इट वॉज अ बॉगी स्वेलिंग, somewhat hard, movable and not fixed with the underlying structure, not compressing any underlying structure। तो मैं बोला ठीक है देख लेंगे। I couldn't assure you because इस प्रकार का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। ट्यूमर मेडिसिन से जाता है ये मुझे मालूम नहीं था। तो मैं बोला कि आई विल ट्राई, बट एज यू आर टोटली गुड विद दिस आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो मैंने उनको जो माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया था उसके लिए दवा दी थी, उससे उनको अच्छा लगा। लैनोक्सिन लैसिस लेके भी उनको अच्छा नहीं लगा था, वो आयुर्वेदिक दवा से अच्छा लगा करके उन्होंने मुझे चांस दिया ये ट्रीट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये मल्टीपल चीजें व्याधि संकर जैसे हो रही है, तो दिस इज काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज, ऐसा मुझे लगा। उसमें वो जैन महिला थी, उपवास करती थी, बहुत चलती थी, ये खाने में अम्लशुक्त पाकी सेवन था, ये ढोकला और ये ठेपला ये बहुत सारा खाने में आता था। कभी खाना है तो यही खाना है, नहीं तो बिल्कुल लंघन करना है या उपवास करना है, इस प्रकार का ट्रेडिशन था। तो उनको मैंने वात रक्त का उपद्रव करके ये किया। जब भी मैं चरक पढ़ता था तो मुझे हमेशा चरकाचार्य ने वात रक्त के बारे में गाइड किया। एक दिन सपना पड़ा सुबह 3 बजे, तो उसमें वात रक्त आ गया, तो बताया कि आप थोड़ा वात रक्त के उपद्रव पढ़ लो। तो पढ़ लिया तो एकदम ये लगा, अस्वप्न रोचक श्वास मांसो को तो शिरोग्रह हिक्का पांगुल्य विसर पाक तो भ्रमक्लमा। इसमें उन्होंने जो मर्मग्रह अर्बुद का उल्लेख किया है उसका कभी सोचा नहीं था मैंने। जब ये उपद्रव में मैंने मांसद मर्मग्रह अर्बुद देखा तो मुझे लगा कि इसका सोच वातरक्त के जैसा होना चाहिए, ये ऑटोइम्यून डिसीज वातरक्त है। नेक्स्ट प्लीज। दूसरा, ये मैंने बताया ना कि ये लेडी 58 ईयर ओल्ड की, उनको संक्रमण समय में जानोग्रह था, एक दिन चलना ही बंद हो गया। उनको विटामिन B12 और विटामिन D सप्लीमेंट दिए गए पैर के लिए। उसके बाद जब चलना बंद हो गया तो लोग मेरे पास जब लेके आए तो उनका वो ESR हाई था, CRP हाई था, B12 लो था, विटामिन D डेफिशिएंसी थी। मॉडर्न का डायग्नोसिस था रिएक्टिव आर्थराइटिस विद बायलैटरल कंपार्टमेंट लॉस। द एडवाइस वाज tibial osteotomy फॉर टेम्पररी रिलीफ एंड टोटल TKR फॉर परमानेंट रिलीफ। पेशेंट को आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर बताया गया था, नहीं हुआ तो TKR बताया गया था। यह भी ऐसी चीज है कि मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये, अभी देखिए एक बात के बात बारे में तो बताता हूं कि कुछ नहीं करना है तो B12 करो, विटामिन D करो, आपको अच्छा डॉक्टर बोला जाता है। इफ एवरीथिंग इज डन एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, डू B12 एंड विटामिन D। पेशेंट को लगता है बहुत बड़ा डॉक्टर है क्योंकि हर एक का विटामिन D लो आता है। दिस इज ऑटो इम्यूनिटी, दिस इज ऑटो इम्यूनिटी। विटामिन D का कैल्सरॉल सैचेट दो आप, अपराइज D3 दो, विटामिन D राइज अप नहीं होता है, फिर बोला जाता है कि आप इंजेक्शन ले लो। देखिए आयुर्वेद सत्कार्यवाद को मानता है, कारण के अनुसार यह कार्य अगर घटता है तो आप कार्य अच्छा करते हो, कारण का क्या करेंगे आप? कारण को तो ट्रीट करो। लोग बोलते हैं हम बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं फिर भी हमारा विटामिन B12 कम क्यों? लोग बोलते हैं हम बरसों से विटामिन कैल्शियम खाते आ रहे हैं, व्हाई द विटामिन D इज डेफिशिएंट। जॉगिंग करने वाले लोग बोलते हैं सुबह हर रोज हम धूप में दौड़ते हैं, क्यों हमारा विटामिन D लो है? देयर इज नो रीजनेबल आंसर इन मॉडर्न साइंस, बिलीव मी। दिस इज अ बिग इंडस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी which is supplying like nothing B12 injections and B12 tablets and vitamin D. We are having that answer because it is all coming from autoimmunity. तो ये पेशेंट का जो संधि शैथिल्य से मुझे लगा, देखिए आपको लगेगा ये संधि शैथिल्य क्यों, तो चरक ने ये पूर्व रूप में बताया है। स्वेदो अत्यर्थम न वा कार्ष्ण्यम स्पर्शाज्ञत्वम क्षते अरुक संधि शैथिल्यम आलस्यम सदनम पीड़िगोद्गमा। आलस्यम देखो ऊपर है। पेशेंट बोलता है बहुत कंटाळ आता है, आलस होता है। इसके बारे में बताऊंगा आगे जाके ये ऐसा क्यों होता है लोगों को। अगर आलस को आप
डिसीज बोलेंगे तो सोसाइटी में वो 95% है। आप सोचो, आप में से कितने लोग सुबह उठते समय चलो आज उठना है, काम करना है, अरे यार उठायचंय राव, क्लिनिकला जायचं 9 वाजता। सी, ये आलस्य जो है ना वो हर एक में आ गया है आजकल। आलस्यात श्रमात आलस्य, शरीर गौरवात श्रमात आलस्य। हमको लगता है बहुत काम करते हैं, हम देते 15, 20, 25 पेशेंट, हमको लगता है बहुत काम किया आज, बहुत ज्यादा रश थी ओपीडी में, एकदम टायर्ड हो गए आज, कल उठने की बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है। और हमारे जो ये लोग हैं बड़े ऋषि जैसे 250-300 पेशेंट को देखते फिर भी फ्रेश है, आपको एंटरटेन करते हैं शाम में उनके क्लिनिक में, आपसे बात करते हैं। हम लोग बोलते हैं अभी मत फोन करो, अभी बहुत थका हुआ हूं मैं। दिस इज द थिंग विच इज हैपनिंग। तो संधि शैथिल्य का डायग्नोसिस हो सकता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे, नी जॉइंट एक्सरे में कुछ नहीं आता है, एक्चुअल लंबोसैक्रल स्पाइन भी कुछ नहीं दिखाता। मैं हमेशा लोगों को एक बात बताता हूं कि एमआरआई पे जाके ट्रीटमेंट मत करो। इट इज अ रॉन्ग काइंड ऑफ डायरेक्शन यू आर गेटिंग वंस यू सी द एमआरआई। मार्जिनल ऑस्टियोफाइड्स एंड लंबर स्टेनोसिस इज नॉट अ क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी। उसको देख के आगे जाएंगे तो फंस जाओगे। क्लिनिकल असेसमेंट करो, एसएलआर करो पेशेंट की, उसके रिफ्लेक्स देख लो, पैर की उसका ताकत देख लो। इफ ऑल इज वेल, patient is not having extensive radiculopathy, patient is not needed for any laminectomy, discectomy or knee joint repair. No, clinical examination is important. तो वो करो, आपका डायग्नोसिस लिख लो, बाद में सपोर्ट के लिए एमआरआई ले लो। पहले एमआरआई देखोगे भरकट जाओगे, आपको वो कहां का कहां लेके जाएगा। डोंट सी एमआरआई फर्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। तीसरी केस है ये, थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि आगे बहुत सारी स्लाइड्स है। ये पेशेंट भी इफिजन टैपिंग हो गई थी, स्टीरॉइड्स पे था, वाइसोलोन 5 मिलीग्राम मेंटेनेंस के तौर पे ले रहा था। पिताजी को सोराइटिक आर्थराइटिस था, खुद मद्यपान करता था और ये बार्बर था, तो ये छोटी खोली जो थी उस खोली में उसका शेविंग का काम रोज करता था। आतप सेवन इस प्रकार से भी होता है जिसको निरग निस्वेद बोला जाता है। व्यायामम उष्ण सदनम गुरु प्रावणम क्षुधा, तो उष्ण सदन ऐसा ही तो देखना चाहिए। इस प्रकार से भी अगर निरग निस्वेद होता है तो स्वेद से डिसीज होते हैं। हम बोलते हैं आप धूप में घूमते हो का, नहीं घूमते, लेकिन काम तो करता है ना। अगर पतरी की शेड में काम करता है तो श्वेत तो है ना, आतप श्वेत तो है, निरग्नि श्वेत तो है, तो उसका सोचना चाहिए करके ये हेतू के हिसाब से लिखा है मैंने। पत्र्याच्या खोलीत न्हाव्याचं काम, दिवसभर न्हावी काम पत्र्याच्या खोलीत करायचं। तुम्ही एसी मध्ये बसून कंटाळता, विचार करा त्याचं काय होत असेल। त्यामुळे वातरक्त, उपद्रवात्मक, व्रण, मांसकोत, पाक, कर्दम, विसर्प, क्वेरी। नेक्स्ट प्लीज। ये स्लाइड देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सी द वुंड which is healed afterwards after the treatment. You can come across the residual discoloration just above the medial malleolus of the right leg. That was a big wound when he came to me. And this was the posture. चरक बताता है, ऋग विधानवितम अभिक्षणम वायु संध्यस्ति मज्जसु छिन्नन्त्येव चरन्त्यंतर वक्रीकुर्वच्च वेगवान करोति खंजम पंगुवा शरीरे सर्वतः चरण। वात रक्त आदमी को खंज या पंगु बना देता है। जरूरत नहीं है काइफोस्कोलियोसिस और लॉर्डोसिस का सोचने की, वात रक्त इटसेल्फ सफिशिएंट है। देखिए वो कर्वेचर क्या हो गया। ये आदमी पहले आयुर्वेदा के पास नहीं आया करके उसकी ये हालत हो गई। ये अगर पहले अप्रोच हो जाता होता उसका स्पाइनल कॉर्ड अच्छी तरह से ठीक रहता। करोति खंजम पंगुवा शरीरे सर्वतः चरण कृत्वा आदौ हस्तपादे मूलम तो कृष्णम देहम विधावती। हाथ पैर में हाथ होता है पहले, लेकिन कृष्णम देहम विधावती सब जगह पे फैलता है और फिर टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। पार्स इंटरकेलरीज, पार्स मेडुलरीज सब इधर उधर हो जाते हैं तो टेढ़ा हो जाता है। दिस इज व्हाट द पेशेंट ऑफ वात रक्त मांसकोत एंड आगे जाके अगर कहेंगे तो गंभीर वात रक्त मेकिंग खंजे एंड पंगु। वॉकिंग लाइक दिस, ही वाज वॉकिंग लाइक दिस। गुरुद्रवत चलती जो बताया उसके जैसे उसका चलना था। नेक्स्ट प्लीज। This is one of the fantastic case which appreciated more me in front of allopathic people. This patient came, which is a chief surgeon and dean of BARC, Bhabha Atomic Research Center. He came to me. And actually one of my patients
they got cured from his leg pain, which was advised at TKR. They told his son that क्यों नहीं आप आयुर्वेदा के लिए जाते? तो डॉक्टर बोले कि मुझे आयुर्वेदा के बारे में कुछ मालूम नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी गई एलोपैथिक हॉस्पिटल में सर्जरी करने में। तो कोई चारा नहीं था करके वो मेरे पास आ गए, लेकिन he was very humble. The knowledge makes the person humble. Likewise, he was a dean in hospital, treated so many critical cases in surgery. He came to me and he said, "Doctor, I have lost all my hopes and probably Ayurveda and you are my hope." तो उनका डायग्नोसिस था, उनको पहले HLA-B27 पॉजिटिव था ऐसा उन्होंने बताया था, उनके पास रिपोर्ट नहीं था क्योंकि पहले हो गया था, लेकिन वो बोले कि वो उसका जो इंटेंसिटी था वो बहुत ही कम था, उनको बायलैटरल सैक्रोइलियाइटिस बैठा था, पहले बहुत पेन था, तो फिजियोथेरेपी वगैरह करके उनको याप्यता थी, क्योर नहीं था, उनको प्रोग्रेसिव सुप्रानिकुलर पाल्सी PSP करके डायग्नोस किया गया था। ये सब हिस्ट्री देखने के बाद मुझे लगा कि ये प्रवेपक है, प्रवेपक जो चरक ने अगेन उसके उपद्रव में बताया है। मूर्छा मदरुक तृष्णा ज्वरम मोह प्रवेपका, तो प्रवेपका ही थी कंपा, ऐसा लिखा है। एक बहुत ही अलग सी बात ऐसी है, चरक विधि शोणित अध्याय में शोणित प्रदोष व्याधि में कंप का उल्लेख करता है। देखिए, स्वेदा शरीर दौर्गंध्यम मदा कंपा सुरक्षया, ये शोणित प्रदोष से कंप आएगा या शोणित प्रदोष से सुरक्षा हो जाएगा, ये बात कुछ हजम नहीं होती। प्राइमरीली शरीर दौर्गंध्यम स्वेदा मदा कंपा सुरक्षया, देखिए हम हमेशा स्वरक्षय होता है तो स्वर यंत्र का भी सोचते हैं या फिर ऊर्ध्व जतुरत का सोचते हैं, शोणित प्रदोष का तो सोचते नहीं कभी, लेकिन स्वरक्षय बताया है। मुख मिनमिन गदगद का सोचते हैं, स्वरक्षय का कभी सोचते हैं? कभी नहीं सोचते हैं, तो स्वरक्षय बताया है। तो प्रवेपक इसका मतलब कंप, तो मैंने बोला कि शोणित प्रदोष है, उसकी वजह से उनको ये हो गया। और ओजो विश्राम से इसलिए लिखा कि पहले इसमें उनकी वाइफ MD गायनेक है और वो खुद सर्जन है। She was reluctant to speak with me because she was thinking that I am having only Ayurvedic knowledge and no modern knowledge at all. लेकिन जब मैंने उनसे बात की और उनसे बात करने के बाद उनको थोड़ा, जैसे तपन कुमार सर बोलते हैं कि सर ने सुबह एक बहुत अच्छी बात बताई जो हमेशा याद रखनी चाहिए। सर बोले कि शास्त्र में सोने का भी, चांदी का भी और ताम्र का भी बस्ती नेत्र बताया है, आपको दिखाना चाहिए पेशेंट को कि मैं अभी सोने का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसके इतने पैसे लगेंगे। यू नीड टू शो, दिस इज द टाइम ऑफ कली युगा, यू नीड टू शो। आपको नॉलेज है वो दिखाना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जब मैंने उनसे बात की, पहले तो रिलक्टेंट थी, जब वो मुझसे बात करने लगी, उन्होंने मुझे पूछा कि आपको डॉक्टर क्या लगता है इससे, तो मैं बोला कि मुझे लगता है ये आयुर्वेदिक डायग्नोसिस है, इसको पार्किंसोनिज्म लाइक जो बोलते हैं वो गलत है, ये PSP भी नहीं है, दिस इज ऑटोइम्यून डिसीज। तो बोली ऑटोइम्यून, तो मैंने बोला हाँ, एंकिलोजिंग इटसेल्फ वाज ऑटोइम्यून डिसीज, HLA-B27 पॉजिटिव होता है, उनका था। तो बोले हाँ, लेकिन अभी, बोला अभी भी वैसा है। तो बोली उसका क्या मार्कर है क्या कुछ? देखिए, ऑल पीपल आर टॉकिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बायोलॉजिकल मार्कर्स। मैं बोला मार्कर तो इसमें नहीं है अभी कुछ, लेकिन मुझे लगता है। तो मैंने उनको थोड़ा शास्त्र ग्रंथ पढ़ के दिखाया। मेरे बाजू में हमेशा चरक रहते हैं, वो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। तो उनको दिखाया कि चरक है, देखिए इसमें ये बताया है। तो इसमें बताया है कि इस प्रकार के डिसीज में ऐसा कंप आ जाता है जिसको बहुत बार पार्किंसोनियन लाइक सिंड्रोम बताते हैं। तो सिंडोपा उनको चालू थी, तो उनको मैंने बताने के बाद तो थोड़ा कन्विंस हो गई। पहले इसमें कन्विंसिंग थोड़ा कम था, सेकंड इसमें जब ये सब कम हो गया, चलते समय गिरना कम हो गया, तो फिजियोथेरेपिस्ट उनको बोला कि सर आप इंप्रूव हो रहे बहुत अच्छी तरह से, जो बात नहीं थी। तो फिजियोथेरेपिस्ट ने जब बताया, वो साइन करने लगे, वो खुद का चेक साइन नहीं कर पा रहे थे, वो करने लगे। तो उनको किसी दूसरे डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया, तो ये राइटर्स क्रैम्प है। देखिए, प्रथम यानी चोक्तानि व्याधिलिंगानि संग्रहे व्याधेस्ते तदात्वितुलोनि लिंगानि अष्टनि आमयः। ज्ञानार्थ जब व्याधिलिंग बताए जाते हैं तब कभी कभी तो व्याधि होते हैं, कभी कभार वो लिंग होते हैं। तो ये लिंग था, वो व्याधि नहीं था। तो उनको वो जब साइन करने को नहीं आ रहा था, वो बोले वो प्रोग्रेसिव पाल्सी भी हो सकता है या फिर राइटर्स क्रैम्प भी हो सकता है। ये ट्रीट करने के बाद उनको सिग्नेचर करना आना शुरू हो गया। दैट वाज द फर्स्ट कॉन्फिडेंस बिल्ट अप इन हिम एंड हिज वाइफ। तो
वो बोले मेरे को, सर आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मैं बोला क्यों? जब से सर मैंने BARC छोड़ा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं बहुत एक्टिव था, सर्जरी करता था, लोगों से बात करता था, अभी घर पे बैठा हूं। रिटायर्ड थे वो। तो देखिए, आदमी अगर खुद के कर्म से निवृत्त हो जाता है तो वो भी उसके विषाद का कारण होता है, और विषादो रोग वर्धनाम श्रेष्ठम। तो मुझे भी याद आ गई, जब मेरी प्रैक्टिस बंद हो जाएगी तो क्या होगा मेरा भी। तो आई कुड मेक अ सेंस कि अरे सर ने इतने बरस प्रैक्टिस की है, सर्जरी की है, और दूसरी बात बुरी क्या थी, ही वॉज लिविंग इन द प्रीमाइसेस ऑफ BARC। ही वॉज हैविंग क्वार्टर, एवरी डे यूज्ड टू सी द पेशेंट गोइंग। उनको बहुत दुख होता था वो देख के कि पेशेंट जा रहे आ रहे और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सो आई हैव हैड अ चैट विथ हिम, और मैंने बताया सर, उनके बच्चे को बोला कि वहां BARC में कौन है, उनके साथ मैं बात कर सकता हूं क्या? आपके प्रैक्टिस में ये आपको करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो सर बोले हाँ बोलिए। सर आपको जरूरत है कि आप वहां पर जाके बैठिए। तो बोले क्या करूं बैठ के, मुझे कोई सर्जरी नहीं करने देगा क्योंकि आई एम नाउ रिटायर्ड। मैं बोला सर आपको लोग इतना मानते हैं ना, तो एक वॉलंटरी OPD शुरू कर दीजिए सर। 62 ईयर आदमी को मैंने बताया ये गलत है एक्चुअली, लेकिन मुझे करना था वो। मैंने बताया सर वो कर सकते हैं, देख लीजिए। तो बोले कि मुझ में जो फर्क है मैं लिख सकता हूं, तो अभी शायद वो मुझे अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं क्योंकि मैं अभी थोड़ा लिख सकता हूं। एंड दैट क्लिक्ड, एंड ही वाज अगेन जॉइंड एज अ एडवाइजर टू द सर्जिकल विंग ऑफ दैट हॉस्पिटल। तो उनका काम शुरू हो गया। दैट वाज द फर्स्ट विन फॉर माय साइड। एंड तो उनका काम में लगे, तो आगे जाके बताऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। ये लास्ट केस है, इसके आगे केसेस नहीं है, मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए केसेस लिए। ये देखिए, एक आदमी हस्तपाद वैवर ने, आगे आप उसका फोटो भी देख लेंगे। उनको बहुत ज्यादा स्राव था 7-8 बरस से, बहुत सारी ऑइंटमेंट्स ली थी। बाकी कुछ नहीं मालूम होता तो लोगों को बेटनोएट जरूर मालूम होता है, बाकी कुछ नहीं मालूम होता तो कॉम्बिफ्लाम जरूर मालूम होता है। वैसे ही ये बेटनोएट लगाते रहे थे बहुत दिन तक। उन्होंने जो हिस्ट्री में बताया, तो चिंता और क्रोध समय, यानी जब भी कोई विचार मन में आते हैं तो उस समय में ये बढ़ता है। उनका एक बच्चा 10 बरस पहले गया था यंग एज में, तो उसका चिंता, शोक, विषाद ये चीजें थी। और जहां पर काम करते थे वहां पर उनके सीनियर जो थे उनको बहुत तकलीफ देते थे, हैरस करते थे। ये चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे टीचर ने मेरे को एक बात बताई जो आपसे शेयर करूं, जो गोलवाला में बताई है। यहां पर मेरे एक बहुत रिस्पेक्टेड सर है, भाई बैठे हैं, जयंत फड़के सर जी। उन्होंने हमको गोलवाला सिखाया था। तो उसमें एक सेंटेंस था, उनको भी याद रहेगा, उन्होंने मुझे सिखाया, मैं कभी भूलूंगा नहीं ये। लिसन टू द पेशेंट, जस्ट हियरिंग इज नॉट इनफ। लिसन टू द पेशेंट, जस्ट हियरिंग इज नॉट इनफ। तो आप अच्छी तरह से तादाद में होके सुन लो वो जो भी बता रहे हैं। तो उनको सब उनके पास से जब मैंने हिस्ट्री ले ली, तो वो बोले कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है काम पे। काम पे स्ट्रेस होता है, उसका तरीका भी मालूम कर लो क्या है। हाँ होता है क्या स्ट्रेस? हर एक को होता है, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस का हर एक का अंदाज अलग है। आप उसके लिए सोल्यूशन कुछ तो बता सकते हो या उसे शेयर करते सकते हो। तो मैंने उसका डायग्नोसिस किया, शोणित प्रदोष, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस वाज द मॉडर्न डायग्नोसिस। जो डर्मेटोलॉजिस्ट उनको ट्रीट कर रहे थे उनको बोला इसको क्या बोलते हैं, उसको लिख के दो मेरे को, क्योंकि हर एक टाइम तो मेरा तो इतना नॉलेज मॉडर्न का नहीं है कि मुझे मॉडर्न का डायग्नोसिस मालूम पड़े। तो इट वाज डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। दिस इज ऑटोइम्यून डिसीज अगेन। विसर्प ऐसा हमारे इसमें आता है, या इसको हम शोणित प्रदोष बोल सकते हैं। ये जब रेफरेंस निकाले तो वैवर्ण्यम अग्निसादच्च पिपासा गुरुगात्रता क्रोध प्रचुरता बुद्धे समूह लवनासता कंडू उरुक कोठ पीड़का कुष्ठ चर्म दला दया, ऐसे शोणित प्रदोष में बताया करके इसका डायग्नोसिस मैंने शोणित प्रदोष उस टाइम किया था, वही रखा है मैंने। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, अभी ये केसेस हमारी हो गई। अभी हम आयुर्वेद और ऑटोइम्यूनिटी के बेसिक पे अगर ध्यान देंगे, नेवर न्यू कंसेप्ट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। आयुर्वेदा को ये नई चीज नहीं है, हम कुछ नया सुन नहीं रहे, जो शास्त्रकर्ता ने बताया वो हम पढ़ रहे हैं। सो द कंसेप्ट ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स सीम्स टू बी अ नेवर न्यू कंसेप्ट फॉर आयुर्वेदिक साइंस। नो, नॉट एट ऑल। पहले बताया हमारे इसमें, आप सिर्फ मार्कर्स को ढूंढ लिया है, हमको मार्कर्स को देखने, प्रोग्नोसिस को देखने, आगे जाना है। ऑटोइम्यूनिटी हमको मालूम है। द बेसिक ह्यूमरल फैक्टर जो है दोषा, टेंडेंसी टू इन्वेड एंड द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, धातु को ये करना है। धातु जो है वो नेचुरल रेजिस्ट नहीं होती है कि रेजिस्ट करना है इन्वेजन को। ये जब दोष दुष्य संरचना हो जाती है
तो ये दोष दुष्य समोचना की वजह से वहां पर संचय प्रकोप प्रसर स्थान संश्रय इसके आगे की कंडीशन होती है। ये विकर्ण धातु जो है उसमें क्या होता है, डिसीज होता है, डिके होता है, डिजेनरेशन होता है या डेथ होती है। दिस 4 स्टेजेस हैपन, डिसीज, डिके, डिजेनरेशन एंड डेथ, विच इंडिकेट द अर्लीस्ट एंड ओल्डेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑटोइम्यूनिटी। हमारे इसमें बताया है वो। नेक्स्ट प्लीज। ये भी वैसे ही देखिए, त्रिदोषा जब नॉर्मल रहते तो वो धातु की तरह काम करते हैं, थोड़े विशेष हो जाते हैं दोषा की तरह काम करते हैं, एक्सेस विशेष होते हैं तो मला की तरह काम करते हैं। और ये इम्यून बॉडी जो है नॉर्मल रहती है तो व्याधि प्रतिकार क्षमता अच्छी देती है, और जब ये दुष्ट हो जाती है तो मल की तरह या आम की तरह काम करती है। प्राकृतस्तु बलम श्लेषमा विकृत मल उच्यते सच एव ओझा स्मृता का है स पापमा उपदिश्यते। दैट इज व्हाट प्राकृतस्तु बलम श्लेषमा, एंड श्लेषमा इज लाइक ओझा. If it gets vitiated, it becomes papa, it becomes mala. That's what the Sahitakara says. Next, please. This is one of the important theory which Charak has taught about, which is applicable in autoimmunity. Iya kalu nidana dosha disho विषय भव विकार विघात भाव अभाव प्रत्य विशेषा भवंती. कभी भी डिसीज होता है तो इम्यूनिटी के लेवल पे अगर ऐसा होता है कि हेतु बहुत बलीन है लेकिन धातु भी उतना ही बलवान है, परस्परम न अनुबंधन्ति न तदा विकाराभिनिवृत्ति, तो विकार अजननम न तदा विकाराभिनिवृत्ति, काल प्रकर्षात अनुबंधन्ति क्षीरेण च विकार जननम, कुछ देर के बाद डिसीज हो जाएगा. अबलियांश अथवा अनुबंधन्ति, अबलीय रूप में हेतु और दोष या दोष और दुष्य मिल रहे हैं. अनुविकार जननम, बहुत कम इंटेंसिटी में डिसीज होगा या सिम्टम ही आएगा, डिसीज नहीं आएगा. असर्वलिंग विकार जननम, सर्वलिंग नहीं आएंगे, कुछ कुछ लिंग आएंगे, तो उससे आपको मालूम करना पड़ेगा कि डिसीज क्या है. इट विल बी नॉट अ फुल ब्लोन पिक्चर ऑफ अ डिसीज, इट विल बी जस्ट सम सिम्टम्स एंड यू हैव टू गो अहेड विद दैट. नेक्स्ट, इसके अलग विकार विघात अभाव, परस्परम अनुबंधन्ति, यह कलु निदान दोष दिश्यो विषयभ्यो परस्परम अनुबंधन्ति, तो डिसीज हो जाएगा. शीघ्रम अनुबंधन्ति, तो फास्ट डिसीज हो जाएगा, आशुकारी हो जाएगा डिसीज. शीघ्र विकार जननम. बलवताम अनुबंधन्ति, इफ हेतु इज बलवान, दोष प्रकोप इज बलवान, एंड दुष्य असहतत्व, दुष्य अबलत्व इज ऑल्सो बलवान. महांतो विकार जननम, बहुत बड़ा डिसीज हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, कोरोनरी डिसीज हो जाएगी, ऐसे डिसीज हो जाएगी कि जिसमें बहुत सारे सर्व मार्ग व्यापी हो जाएगा वो. नेक्स्ट प्लीज. मैंने हेतु यहां पर लिखे हैं, इसमें भी आपको ये सब मालूम है. मॉडर्न के डिसीज बताए हैं यहां पर, मॉडर्न के कारण बताए हैं. ग्राम्य आहार इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन आई हैव कम अक्रॉस अबाउट द ऑटोइम्यून डिसीज. सर्वे शरीर दोषा भवंती ग्राम्य आहारात, ऐसा लिखा है. तो इसके बारे में आप उसका थोड़ा चरक में जाके ये पढ़ो. अतो निमित्तम ही शिथिली भवंती मांसानी. देखो चरक क्या बोलता है, ग्राम्य आहार सेवन करने से क्या होता है. अतो निमित्तम ही शिथिली भवंती मांसानी, विमुच्यते संदया, विधयते रक्तम, न संधीयते अस्थिचु मज्जा, शुक्रम न प्रवर्धते, क्षयम उपैति ओजः. इतना सब होता है अगर ग्राम्य आहार सेवन करते हैं तो. उसके आगे जाके उन्हें बताया है, स एवं भूतो ग्लायति ग्लानियते, सीदति अंगसाद होता है, निद्रा तंद्रा आलस्य समन्वितो निरुत्साह श्वसती, निरुत्साह से सांस लेता है. साल ढकल करणं म्हणतो ना, आयुष्याचा गाडा पुढे ढकलणं. एक आलेला दिवस पुढे ढकलायचा हो, काय आयुष्यात राम नाही राहिला. निद्रा तंद्रा आलस्य समन्वितो निरुत्साह श्वसती, असमर्थ चेष्टा नाम शारीर मानसी नाम, शरीर की और मन की चेष्टा भी असमर्थ हो जाती है. नष्ट स्मृति बुद्धि छायो, जो सर ने बताया, रिस्पेक्टेड रमेश सर ने बताया, डिमेंशिया जैसा होता है. तो नष्ट स्मृति बुद्धि छायो वो हो जाता है. न सर्वम आयुराप्नोति, रोगानाम अधिष्ठान भूतो न सर्वम आयुराप्नोति. रोगों का अधिष्ठान बन जाता है शरीर, सिंड्रोम्स हो जाते हैं, डिसीज हो जाते हैं, व्याधि संकर बन जाता है, निदान तक रोग हो जाते हैं. देखिए, दिस इज द फर्स्ट
बेस्ट एंड क्लासिकल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज, इससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता। तो ग्राम्याहार, विरुद्धान्न सेवन के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं। आपको एक ही मैं इसके बारे में रिक्वेस्ट करूंगा, देह धातु प्रत्यनिक भूतानी द्रव्यानी देह धातु भी विरुद्धम आपद्यन्ते, ये तो हमने सीखा है। लेकिन एक बात जरूर आपसे शेयर करूंगा, विरुद्धान्य के बारे में सिर्फ संयोग विरुद्ध मत सीखो। यच्च देश काल अग्निसात्म्य अनिलादि भी ही संस्कारो तो वीर्यतच्च कोष्ठावस्था क्रमेरपि, ये सब सीखना चाहिए हमको। रुद्र संपद विधि विच्च यत, ये सबसे बड़ा विरुद्ध है। रुद्र विरुद्ध, संपद विरुद्ध, विधि विरुद्ध, दिस इज ऑटोइम्यून डिसीज का सबसे बड़ा कारण है। हम सिर्फ दूध और केला खाते हैं क्या, रात में दही खाते हैं क्या, इतना सब विरुद्धान्न नहीं है। विरुद्धान्न इज वास्ट साइंस, इनकॉम्पिटिबल डाइट एज द मॉडर्न साइंस सेज। इसमें आयुर्वेद में बहुत बड़ा विस्तार है, उसको हमको सीखना चाहिए। घी के बाद ठंडा नहीं चलता है। स्नेह पित्त से मंदाग्नि क्षीणस्य अतिकृशस्य वा अत्यंबुपानाद नष्टेग्नो मारुता क्लोमी संस्थता, ऐसा उदर में बताया गया है। एंड प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस इज अ कॉमनेस्ट कॉज ऑफ आसाइटिस नाउ, विच इज बिकॉज ऑफ विरुद्धान्न सेवन। जो लोग कोक के साथ पिज्जा खाते हैं या कोई भी प्रकार के स्नेह के साथ ठंडा पानी पीते हैं, उनको उदर व्याधि होता है। ऐसा चरक ने दकोदर में बताया है। स्नेह पित्त से मंदाग्नि क्षीणस्य अतिकृशस्य वा अत्यंबुपानाद नष्टेग्नो मारुता क्लोमनी संस्थिता। अत्यंबुपान करे या शीतांबुपान करे स्नेह के साथ, डिसीज होने वाला है, तो इसको उपचार विरुद्ध बोलते हैं। तो हमको यह ध्यान में लेना है। मानस प्रदोष जो मैंने बताया, भय क्रोध शोक मोह आयास बहुला नाम, वो चरक ने बताई है। विष गर दूषी विषादी, जो आजकल बहुत सारे चीज में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स ये सब आ रहे हैं, वो एक प्रकार के गर दूषी विषय ही है। आपको एक कारण से अवगत करा दूं, ह्यूमिक एसिड इज वन ऑफ द केमिकल यूज नाउ डेज। अगर 50 आम आते हो पेड़ को, तो 500 आम आते हैं, वो डालो आप पेड़ के नीचे ह्यूमिक एसिड, तो दैट लीड्स टू मल्टीपल सेल ग्रोथ इन योर बॉडी, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स इन योर बॉडी। आप स्टेरॉइड देके बहुत सारा दूध अगर भैंस को या गाय को उत्पन्न करने की कोशिश करते हो, तो सेम सेल मल्टीप्लिकेशन इन योर बॉडी, दिस इज अगेन ऑटोइम्यूनिटी। सो ऑटोइम्यूनिटी in future will be seen in every diseases, not just some diseases. वेगो धारण धीरणे ही रोगा सर्वेपि जायन्ते, वेगो धारण धारिणी। तो देखा जाता है बहुत सारे लेवल पे हमको वो ये करना पड़ता है। हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। नेक्स्ट प्लीज। तो मैंने इसको संप्राप्ति के रूप में थोड़ा जो ये किया है, हेतु रहते वो संसर्ग सन्निपात प्रधान दोष प्रकोप रहते हैं। बिकॉज ऑफ one dosha autoimmune disease never happens, never. It is either a sansarga or a sannipata, so you should be prepared for that. आपको द्रव्य भी वैसा ही वीर्यवान चाहिए। कियंता शीर्षीय अध्याय में चरक ने जो दोष के क्षय वृद्धि और सम के बारे में दोषभेद बताए हैं, उनको सीखना चाहिए। वो सब प्रकार हमको देखने को मिलते हैं। हम सिर्फ आशयापकर्ष गति को ही पढ़ते हैं। आशयापकर्ष गति एक गति है, इससे और भी गति है जो हमको पढ़नी चाहिए। उसे ये होने के बाद अग्नि विकृति होती है। प्राधान्य ने धात्वग्नि विकृति, निष्ठापाक में प्रॉब्लम आता है। जो अवस्थापाक है वो कोष्ठ में होता है, निष्ठापाक है शाखा में होता है। विगुण धातु और मल संचय हो जाता है। धातु के लेवल पे मल ही ज्यादा संचय होने लगते हैं, धातु विगुण बन जाते हैं, अच्छे धातु बनते नहीं हैं। और एक चीज ऐसी है कि अगर अपर ओज पूर्ण शरीर में अर्धांजलि है और पर ओज हृदय में रहता है, तो हर एक धातु में रहने वाला ओज विकृत हो जाता है। आइदर उसका विस्त्रंस हो जाता है, उसका व्यापद हो जाता है, या फिर उसका क्षय हो जाता है। मियरली द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज इज नथिंग बट दिस ओजो विकृति। आपको यह देखना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ये एक और मैंने स्लाइड बनाई है। सौक्ष्म्यात् सर्व सरत्वाच्च पौनस्य असृजस्तथा तद्द्रवत्वाच्च सरत्वाच्च देहम गच्छम सिराणैहि, ऐसा चरक ने बताया है। वात्रक की संप्राप्ति ऐसी बताई है। सौक्ष्म्यात् सर्व सरत्वाच्च, वायु सूक्ष्म है, वायु सर्वसर है। सर्वसर यानी उसको कोई रोक नहीं सकता, मैं इधर नहीं जा सकता उधर नहीं जा, सब जगह पे जा सकता है।
सर्वसरत्वाच्च, तो सर्वसर इसका गुण है, सिर्फ सर नहीं है, वो सर्वसर है। तो ये गुण ऑटोइम्यून डिसीज में वात का बढ़ता है। सर्वसर की कारण ही वात ऑटोइम्यून डिसीज का आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। जब ये वात रक्त के साथ आता है तो रक्तगत वात, रक्तावृत्त वात रक्त बन जाता है। इसलिए मैंने यहां पर संप्राप्ति का भेद लिखा है। रक्त जो है तो द्रवत्वात सरत्वाच्च देहम गच्छम शिरायने, वात शिरायन से जाता है, रक्त भी शिरायन से ही जाता है, दोनों साथ में जाते हैं। तो उसकी वजह से और वात और रक्त मिल जाते हैं। लेकिन देखिए 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। जब वात वृद्ध होता है, अत्यंत उपचयम प्राप्यम, तो वो वृद्ध हो जाता है, तो सिर्फ सिम्टम देखने को मिलता है रक्तगत वात करके। जब वो क्रुद्ध हो जाता है तो उसमें रक्तवात को अड़ाता है, उसमें क्रुद्धता है रक्त की, तो कुपिता विशेषण उन्मार्गामी, रक्त के कारण अड़ाए हुए वात का प्रकोप हो जाता है। जब दोनों मिल जाते हैं तो उसको रुद्ध बोलते हैं। विहत गति कृत अत्यंत शौचलेशः, गति भेद होने की वजह से रक्त और वात दोनों मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से दोष दुष्य और ओज दुष्ट हो जाते हैं। तो वात, रक्त और आम, इसमें आम भी बहुत विष जैसा है, आशुकारी है, ये मेलक हो जाता है उनका, वात का, रक्त का और आम का। और ये जितना हेतु प्रधान, जितनी दृष्टि ज्यादा, उतना उनका प्रसर ज्यादा, उनका स्थान संश्रय ज्यादा, आगे जाके उतनी उनकी ओजो विकृति ज्यादा। इसलिए चरक ने जो बताया, गंभीर वात रक्त जब भी होता है तो करोति खंजम पंगु हुआ शरीर सरदोच्चरण, ओज को बिगाड़ने के सिवा यह होता ही नहीं है, ओज बिगड़ ही जाता है। तो जब भी ओज बिगड़ जाता है तो इसमें संधि विश्लेषो गात्राणाम सदरम दोष चौनम ब्रह्मा, यह विस्तृत में बताया। स्तब्ध गुरु वात्रता, वातशोफो, वर्ण भेदो, ग्लानिस तंद्राच व्यापन्ने, व्यापद में बताया। मूर्छा मांस क्षय मोहा, प्रालोप मरणम क्षय, क्षय में बताया। तो ये सब देखा जाता है वातरक्त के ओज विकृति प्रधान अवस्था में। और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है, स्थिर के बारे में ओज के क्या बताया है। ओज स्थिर होता है यानी क्या होता है, उन्होंने बताया ये शरीर अवयव स्थैर्यकारी होता है। ओज का स्थिर गुण शरीर अवयव स्थिरकारी। और दूसरा उसका अर्थ बताया उन्होंने, टीकाकार ने, ढल्लन ने उसके बारे में बताया, सुख दुख अचंचलत्वम करोति इति स्थिरम। सुख और दुख में जो आदमी को अचंचल करता है वो ओज है, जो आदमी को स्थिर करता है, आदमी को चंचल नहीं बनाता, ये भी उसका गुण है। तो आदमी जो वाइबल हो जाता है ना, उसमें ओज दृष्टि होती है। आदमी बहुत वाइबल हो जाता है, आदमी को लगता है क्या करेंगे अभी, आदमी को लगता है आसमान फूट गया, अभी कुछ नहीं रहा। अगर ओज अच्छा रहता है तो ये चीज नहीं होती है। तो इस प्रकार की संवृत्ति है। नेक्स्ट प्लीज। लक्षण देखिए, patients of autoimmune diseases come with these symptoms to you. रुजा भेदा, तोद भेद शूल दाह, so many things are there. उसमें से कुछ लिखे हैं। शोथ, सवर्ण विवर्ण एकदेशीय व्याप्त, स्फुरण आयाम आकुंचन संकोच ऑफ सर्टन एरिया, गुरुता ऑफ सर्टन एरिया, जाड्य, सुप्ति स्वाप बाधिर्य चिमचिम, ये भी बताते हैं। पाक पूय विद्रदी को व्रण कोथ, ये भी आपके पास लेके आते हैं लोग। वक्रता संधि अंगुली नख और गात्र के प्रदेशी, वक्रता यहां पर भी होती है। डेविएशन ऑफ सर्टन ऑर्गन, ग्रह होता है या स्तंभ होता है, अकड़ गया बोलते हैं लोग। त्वक विकृति होती है, उसमें वैवर्ण्य होता है, पिटिका होती है, कंडू होता है, स्फोट होता है, शोष होता है। संक्रमण कष्टता होती है, आदमी बोलता है खंजत आ गई, पंगुत आ गई, चल नहीं सकते, आधार के बिना चल नहीं सकते, किसी को तो उठाना पड़ता है, किसी को तो साथ में चलाना पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज।